Hello everyone, welcome back to your one and only YouTube channel where I teach you a lot of concepts including physics, chemistry, bio and social science along with English. So today we will be doing a session for class 8 CBSE mathematics, that is linear equations. Now, linear equations are, you know, a bit of a new concept for you guys because अभी class 7 तक you might have been doing graphs, this, that. अब हम लोग करेंगे graphs और equations को equate. कैसे करेंगे? आगे चलते हैं सेशन में. I'll tell you each and everything about linear equations, कैसे बनते हैं, कैसे फॉर्म करते हैं, कहाँ से आए, कौन लेके आया. Then साथ ही साथ में expression equation के बीच का difference, क्या क्या point remember करने हैं, कैसे solve करना है, how you can easily solve them, एक mental maths का trick and also some questions. So 5, 6, 7 things we would be covering in this whole session. So without wasting any time, I hope you are all good in your health. Do not forget to share this video with your friends if you find them beneficial for you also. So let us start with our first chapter, which is our, I don't know the chapter ka number, but still, let us start with linear equations. Just a second, let me clean my pencil. Yeah, let us start with linear equations. Yeah. So what are linear equations? Linear equations are basically those equations जिनमें वेरिएबल एक रहता है and the power of exponent is always equals to 1. Now अब ये थोड़े से new concept है, let me tell you in a bit of detail. ठीक है? Now अब for example जैसे मैं एक linear equation लिखूं in one variable, क्या लिखूं, a plus 2/4 is equals to 5. ठीक है? Let us say this is an equation. ठीक है? तो in this particular equation I have one variable which is a. This is a variable. ठीक है? This and this, they both are constants. ठीक है? तो एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का पावर, मतलब इसके ऊपर कोई भी एक्सपोनेंट्स ऐसे नहीं रहना चाहिए, ए स्क्वायर नहीं रहना चाहिए, ये ऐसे नहीं रहना चाहिए, गलत हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन आएगा ही नहीं. ठीक है? तो एक्सपोनेंट का पावर शुड ऑलवेज बी 1, वेरिएबल का पावर शुड ऑलवेज बी 1 एंड इट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू समथिंग, 0 से इक्वल नहीं रहता. ठीक है? नाउ क्योंकि सॉरी कांस्टेंट्स का वैल्यू 0 नहीं हो सकता कभी भी, बिकॉज सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा, सो इट इज नेवर 0. So as of now, let us just focus on variables and constants. And let me tell you one more thing. This linear equation has एक भाई also, very dear friend of him, linear equation versus algebraic equation versus algebraic expression. ठीक है? दोनों में, ये दोनों भाई बंधु में क्या फर्क है, लेट मी टेल यू. ठीक है? विस्तार में समझाऊंगा, आराम से समझाऊंगा. सी, algebraic expression में ना कभी भी, लेट अस से, इक्वल्स टू का साइन नहीं आएगा. ठीक है? ये कभी नहीं आता एक्सप्रेशन में. वेयरएज इन इक्वेशन, सी मैं इजी वे में समझाऊं, एकदम सब कुछ साइड हटा दो, बुक को फेंक दो साइड में, कॉपी वगैरह फेंक दो पीछे, एकदम देसी तरीके से समझते हैं. ठीक है? दैट इज हाउ वी स्टडी इन आवर क्लासरूम्स. सो सी, जो इक्वेशंस होते हैं ना, लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर का तो मतलब समझ गए, सिंगल पावर. इक्वेशन देखो, इक्वेशन बोल रहा है मतलब इक्वेट करना है कुछ चीज को, तो इज इक्वल्स टू का साइन आएगा. एक्सप्रेशन में इक्वेट करने नहीं बोल रहा है, तो उसमें इक्वेशन का साइन नहीं आएगा. As simple as that. So equation is something when you equate something to something.
For example, there is a particular number 20, you are relating it to 25. So we say 20 is equals to 25, although that is not true, but still 20 is equals to 22. You are relating two stuff, right, with an equals to sign. So this and this, let me draw it. So 20 is equals to 20. You're relating them, right? So this is actually the symbol of equity or equals to, and this is most often used in linear equations. Okay. Now, let me tell you some common grounds on identifying a linear equation. Okay. So let us say that there is some specific equation. Let's say x plus 2 is equals to 3. Very simple equation. Very simple equation. हर जगह देखने को मिल जाता है. ठीक है? Sorry, कहीं पे रह नहीं रहा है. हाँ. So very simple equation. अब देखो, धीरे धीरे आराम से समझना, अच्छे से समझना. कुछ ना आए तो कमेंट बॉक्स में डाल देना या फिर ग्रुप्स में मैसेज कर देना. आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज आई कैन. ठीक है. दिस, एज आई टोल्ड यू, इज द सिंबल ऑफ इक्विटी, राइट. दिस साइड इज ऑन योर लेफ्ट. ठीक है, लेफ्ट साइड में तुम्हारे, और इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में, तो वी कॉल इट द लेफ्ट हैंड साइड और LHS. इन द सिमिलर मैनर, जो राइट साइड में रहता है उसको हम बोलते हैं RHS और राइट हैंड साइड. ठीक है. देन इसका जो वेरिएबल का पावर रहेगा, इट वुड बी ऑलवेज ग्रेटर टू 1. 0 नहीं हो सकता, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, या तो 1 हो जाएगा. ठीक है. देखो, अगर x की जगह पे हम लोग 1 रखेंगे तो 1 + 2 3 आ गया, हम लोग को x का वैल्यू पता चल गया. तो x कैन बी अ वेरिएबल, कैन बी एंड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1. 0 आ गया तो इक्वेशन ही नहीं है. ठीक है. 2:3 फॉल्स प्रूफ हो जाएगा, इक्वेशन ही नहीं. ठीक है. सो दैट इज समथिंग. नाउ अब हम लोग को फाइंड करना रहता है. ठीक है. अच्छा, ये हो गया. लेट मी सी इफ एनीथिंग इज लेफ्ट. Yeah, so in an equation, LHS is always equals to RHS. ये हमेशा ही होना है. ठीक है. बिकॉज दैट इज द बेसिस ऑफ वेरिफिकेशन. तो तुम सॉल्व कर ली, तुमको कोई इक्वेशन दे दिया, बोल दिया कि इसको बताओ लीनियर है कि नहीं, तो तुम LHS RHS को कंपेयर करोगे, इक्वल आ गया तो वो लीनियर इक्वेशन है. तो इन द सिमिलर मैनर, हमेशा LHS जो RHS है वो दोनों इक्वल ही आएंगे. अब भाई 20 को तो 25 नहीं बोलेंगे ना. वी कैन नॉट से दैट 20 इज इक्वल टू 25. द सिमिलर मैनर, LHS इज ऑलवेज इक्वल टू RHS. ठीक है. नाउ वी नीड दैट टू फाइंड सर्टेन वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल. ठीक है. अब see, let me tell you how to solve, what are the basis of solving a question like this. Let us take a few questions. हाँ, मेरे को ना 2 वेरिएबल करने का आदत हो गया है. ठीक है. Let me take. So let us say these are the 4 questions that we need to do right now. ठीक है. इसमें सारे ऑपरेशंस आ रहे हैं. ठीक है. प्लस माइनस, सॉरी, मल्टीप्लीकेशन. हाँ, मल्टीप्लीकेशन भी आ गया, 4y है, मल्टीप्लीकेशन आ गया, डिवीजन भी आई इंक्लूडेड. ठीक है. सो अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे. अब तुम लोग तो थोड़े बहुत फेमिलियर हो गए. तो लेट अस लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. ये सबको हटाते हैं साइड में. लेट अस जस्ट कॉपी इट एंड उड़ा दो. ठीक है. लेट अस सॉल्व दिस फर्स्ट वन. सो हाउ कैन यू सॉल्व दिस. देखो, ऐसे करो कि वेरिएबल्स एक साइड आ जाए और कांस्टेंट्स एक साइड आ जाए. ठीक है. तो कैसे करोगे. 2 को उठा के इधर भेजोगे. ठीक है. LHS से 2 को उठा के यू सेंड इट टू RHS. ठीक है. तो इट वुड बिकम, अच्छा, अब जब भी LHS से उठा के RHS में भेजोगे ना, जो उसके सामने का साइन रहेगा वो चेंज हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा. ठीक है. प्लस का ऑपोजिट क्या होता है, माइनस. तो ये कैसे हो जाएगा, x is equals to 3 minus 2.
ठीक है, आगे सॉल्व करो, x की वैल्यू आ जाएगी 1। ये तुम्हारा है आंसर, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, अब ये जो हम लोग वैल्यू भेजे एलएचएस से आरएचएस में, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ट्रांसपोजिशन, मतलब ट्रांसपोज करना फ्रॉम एलएचएस टू आरएचएस और फ्रॉम आरएचएस टू एलएचएस by reversing their sides, sorry signs। ठीक है, बेसिकली क्या किए? ठीक है, ट्रांसपोज फ्रॉम एलएचएस टू आरएचएस और आरएचएस टू एलएचएस। ठीक है, एलएचएस से आरएचएस भेजो, आरएचएस से एलएचएस भेजो, एक ही बात है। ठीक है, बस काम करो, वेरिएबल को एक जगह डालो, कांस्टेंट्स को एक जगह डालो। ठीक है, बीच में इक्वल्स टू डालो, आ जाएगा तुम्हारा आंसर। ये जो तुमने किया, 2 को उठा के 3 के पास भेजा, साइन जो था उसको रिवर्स कर दिया, उसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज x -2 इक्वल्स टू 3। ठीक है, अच्छा अब चलो, आई विल गिव यू सम टाइम, पॉज करो एंड एक्चुअली ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप यू हैव सॉल्व्ड बाय नाउ। सो x आया, 2 इधर जाएगा ट्रांसपोज होके, माइनस का साइन था वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2, तो x का वैल्यू आ गया 5। इजी पीजी, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, x का वैल्यू आ गया 5। वी ट्रांसपोज्ड 2 from LHS to RHS and reversed its sign। एज सिंपल एज दैट, इजी पीजी, एकदम इजी पीजी, कुछ सिर दर्द नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, चलो अब अपन जो चीज किए थे उसको पेस्ट करते हैं। कहां से पेस्ट करूं, आई हैव नो आइडिया, छोड़ो, मैं एक रैंडम क्वेश्चन बना लेता हूं। 4y + 4 इक्वल्स टू 4। ठीक है, नहीं, इक्वल्स टू क्या कह दें, एक सेकेंड है, सी, देखो, इज इक्वल्स टू 3 बोल देते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? चलो पहले एक काम करते हैं, वेरिएबल वाला जो टर्म है, मतलब ये पूरा जो है, ठीक है, इसको एक साइड रख लो, बाकी को दूसरे को उस साइड भेज दो, ट्रांसपोज कर। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज यहां ध्यान रखना, जो आरएचएस में नंबर है वो पहले आएगा एंड देन ये बाद में आएगा। ठीक है, ऐसा मत कि बड़े को पहले छोटे को बाद में डाल देना, नेवर। ठीक है, तो वी हैव 4y इक्वल्स टू, साइन बीच में, 4 उधर गया टुवर्ड्स हियर, साइन चेंज होके माइनस हुआ, वी गॉट 3 - 4। ठीक है, 4y is equals to 3 - 4 is -1, करेक्ट। ठीक है, अब देन अब क्या करेंगे, देखो यहां तुमको दिख रहा है 4y है, इसको अगर तुम ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा 4 × y इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब क्या करो, अगेन ये कांस्टेंट अलग हो गया, वेरिएबल अलग हो गया। ठीक है, बीच में ऑपरेटर है एक तो, इसको बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर। ये जो मल्टीप्लीकेशन, प्लस, माइनस, डिवाइड, ये सब जो है ना, इनको बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो ये सब, दीज ऑल आर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। सो इसको हटाओ, ये तो पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट अलग हो गया, वेरिएबल अलग हो गया, यू हैव -1 ओवर हियर, वेरिएबल को एक जगह रखो। अच्छा, अब ये इधर जाएगा तो इसका साइन चेंज कैसे होगा पता है, मल्टीप्लीकेशन डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर ये आया, तो इसको ऐसे होना चाहिए था, बट नहीं, ये डिवाइड होके इसके नीचे चले जाएगा। ठीक
ठीक है, तो 1/4 दिस वुड बी द वैल्यू ऑफ 5। सेम एक और क्वेश्चन लेते हैं, लेट अस टेक 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 2। क्या आया, 2y इक्वल्स टू 3 को उधर भेजे, 2 माइनस 3, यू गॉट 2 इंटू वाई इक्वल्स टू 1 माइनस 1, y का वैल्यू आ गया -1/2। इजी पीजी, एकदम इजी, कुछ सिर दर्द नहीं, कुछ नहीं, एकदम बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, अच्छे से सॉल्व हो जाता है। अब एक लेते हैं डिवाइड वाला, टफ वाला थोड़ा सा, ठीक है। 5y/2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 3। अब देखो, इसमें मल्टीप्लीकेशन भी है, डिवीजन भी है, ठीक है। चलो अब यहां पर ना एक और चीज करते हैं, यहां पर एक और वेरिएबल डाल देते हैं, ठीक है। सेम वेरिएबल डालना, अलग अलग, हाँ। अब क्या करें भैया, ये तो हम सीखे नहीं, ठीक है। सो क्या होगा, देखो मैं अच्छे से समझा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अभी ये 2y वाले पार्ट को स्किप करो, इसके ऊपर हम लोग आएंगे थोड़ी देर में। ये 2y याद रखना, लेना है करके, ठीक है। अभी बस इतने से इक्वेशन को देखते हैं, ठीक है। देखो मैंने क्या बताया था, ट्रांसपोज करेंगे, वेरिएबल्स को एक साइड में ला लेंगे और कॉन्स्टेंट्स को अलग कर लेंगे। ये वेरिएबल वाला पार्ट है, इसको एक जगह रहने दो, 6 को उठा के भेज दो उधर, तो यू गॉट 5y/2 इज इक्वल टू 3 माइनस 6। सो 5y डिवाइडेड बाय 2 यू गेट -3, ठीक है। अब डिवीजन में जो भी नंबर रहेगा उसको रिवर्स करोगे तो वो हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। इसको भेजो इधर, ट्रांसपोज करो, 5y आ गया -3 इंटू 2, तो यू गॉट 5y इज इक्वल टू -6, ठीक है। अब इसको अलग कर लो, 5 इंटू वाई इज इक्वल टू -6, 5 को उधर भेजो, डिवाइड में चले जाएगा, -6/5। दिस इज योर आंसर। इजी पीजी, लेमन स्क्वीजी, एकदम इजी है, कुछ सिर दर्द नहीं, ठीक है। लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन, -2y डाल दो, थोड़ा सा बड़ा कर दो, 5y/2 प्लस 6 इक्वल्स टू 3 प्लस 2y। अब देखते हैं, पॉज करो, देखते हैं हाउ मेनी ऑफ यू कैन सॉल्व दिस, ठीक है। देन मेरे को सोल्यूशन भेजना व्हाट्सएप पे। सो यू हैव 5y/2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू, क्या था, 3 प्लस 2y, ठीक है। थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा भाई देखने के लिए। अच्छा अब देखो, अब पहले तो क्या बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे ना, तो पहले इसको उधर भेजना, ये जो है ना ये वाला डिवीजन में अगर रहा तो इसको सबसे पहले उधर भेजना, ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और सिंपल दिखेगा, ठीक है। कोई भी मेथड से करो, ठीक है, बस तुमको कैसे भी करके वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में रख के या फिर राइट हैंड साइड में रख के उसका वैल्यू निकालना, ठीक है। तो यू हैव गॉट 5y प्लस 6, 2 को मैंने उधर भेज दिया, 3 प्लस 2y, ये होल इंटू 2 आएगा, ठीक है। सिर्फ 2y से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये 3 प्लस 2y से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो यू हैव गॉट 5y प्लस 6। ये तो LHS ऐसे ही रहेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लगाओ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यू हैव गॉट 6 प्लस 4y, ठीक है। अब इसको लेके उधर लेके जाओ, 5y इज इक्वल टू 6 को उधर भेजे, 6 माइनस 6 प्लस 4y, कॉन्स्टेंट टर्म्स को साथ में रखो, ये कैंसल आउट हो गया, ठीक है। 5y इक्वल्स टू 4y, ठीक है। अब 5y माइनस 4y इक्वल्स टू 0, वी हैव गॉट y की वैल्यू एज 0। दिमाग खराब होता है ना ऐसे, जब आता है इतना लंबा सॉल्व करो तो 0 आंसर आएगा, मेरा भी होता था, ठीक है। सो या दैट इज a linear equation in one variable, ठीक है। There are some questions which I will send you shortly. Till then, happy learning. I'll see you soon. I'll provide you the notes and keep watching, keep loving us. The support you give is very much astonishing for us. Keep supporting. Till then, I will meet you the next time. Bye-bye. Stay safe, stay healthy, be at your homes and study with Vigilante. Thank you.